Hello everyone, this is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research. It's recognized by MSME, ISO certified, IVAF, AAA recognized from USA. And I am Renu Mangtani, an IIBF certified digital banker, youth icon by Honorable Governor of Maharashtra, YouTuber, researcher, influencer, and much more. And talking about my husband, he is Abhishek Chitransh, founder and CEO of Ankakshar Miracles, an expert master numerologist, and much more. And you can know more about the Ankakshar Miracles on Google, which is our YouTube channel name, our Facebook page name. And today we have CA Minas Cyrus Surti ma'am on this platform as a guest. She is one amongst the 108 co-authors. And hello, ma'am, how are you doing today? Welcome on the platform. Thank you very much for having me on this platform. So let's Blessed to be start with this beautiful podcast with the beautiful mantra. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ. So let's know more about the ma'am and I'll start the screen sharing. Just let me know, ma'am, that whether you're able to see my screen. Yeah. Yes. So, ma'am, CA Minaz ma'am is a chartered accountant, angel card reader, automatic writing practitioner, numerologist and talk therapist, handwriting analyst, access consciousness bars practitioner, life coach and healer, motivational speaker. And these are the beautiful book covers I'll be sharing with you all. It is My Marriage Bliss versus Curse, Seven Lee of Life, Anthology of Wisdom by 108 Visionaries. And just a minute, I'll be sharing the book cover now, one more, which is Mobile Addiction, which is authored by myself and my husband, Abhishek Chitransh. Just a minute. Here is the beautiful book cover, Mobile Addiction. The book is available on Amazon and Flipkart globally. And let's not take much time. And over to you, ma'am. If there is anything which I've missed about yourself, so you please introduce yourself. No, all the introduction has been done by you. And I would just like to add one thing that Yes. this is not the end of learning. My journey still continues and I'm learning new modalities each and every day and progressing myself. I feel that progressing and getting knowledge for self transformation is the most important part. बिकॉज हम जो भी पैसा कमाते हैं वो डेफिनेटली ऊपर नहीं ले जा सकते लेकिन आई हैव द फर्म बिलीफ दैट जो भी हम सीखते हैं इस जन्म में वो हम डेफिनेटली हमारे डीएनए में डाल के अगले जन्म में भी ले जा सकते हैं so that is the true investment I suppose. Right. So life is all learning about and just keep learning. Yes. Okay. So moving on, grief to gratitude, दुख से कृतज्ञता की ओर. The title has hidden suspense in it and it carries a lot of emotions, especially. So our audience would like to listen the hidden story besides it, ma'am. Yeah, as I have mentioned in my book, my story I have just mentioned for the sake that people can read it and get some motivation from it. As mentioned by me, I had two kids, my daughter and a son, and they were diagnosed with some disease which was also not clinically proven, but it was symptomatically proven. And the divine took them away in 2013 in just a gap of 105 days. दोनों के बीच में जाने के बीच में इतना ही फर्क था. So those two blows were the blows which I think मैं जिंदगी भर शायद निकल नहीं पाऊंगी उससे मरते दम तक वो तो रहेगा लेकिन yes I have come out of it. I have come out of the depression from the suicidal thoughts and everything from that, and I have started my new journey, you can say, on the spiritual path. You can see the backdrop of mine, those are my two kids, and today I feel that I am blessed to have them. Thank you very much. I'm blessed to have them because, yes, I feel that I have my personal angels above me. सबके पास तो खुद के एंजल्स नहीं होते, मेरे पास खुद के एंजल्स हैं एंड दे ऑलवेज लुक आफ्टर मी, टेक केयर ऑफ मी.
लोगों के जो बच्चे होते हैं वो 24/7 उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन मेरे बच्चे हैं वो 24/7 मेरे साथ एनर्जेटिकली है, तो मैं तो फायदे में ही हूँ। That's actually an emotional story, ma'am, but I seriously hats off that how a mother, this is, I cannot put into the words, but hats off to you that you are still working, struggling, and coming out of this. So everyone should डेफिनेटली। read this inspirational story and you will really get motivated because I personally cried after reading it, and when I was preparing the questions, I was not able to do that. But ma'am, that's okay, no problem. Let's move on. It's what piece of advice in terms of healthy and happy life you would like to share with our listeners out here from your treasure of knowledge of occult science? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आई हैव लर्न इट द हार्ड वे, दैट इज सेल्फ लव। मेरे हिसाब से वो करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर नॉट टॉट सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड हमें यही बताया जाता है कि दूसरों की परवाह करो, दूसरों का देखो, पहले सबका देखो फिर खुद का करो। we also have been doing all these things all these years, but I feel जब तक अब आप खुद को प्यार नहीं करोगे, आप किसी को completely प्यार नहीं कर सकोगे। And when you are not happy from within, how can you share that happiness to others? खुद ही दुखी रहोगे, सबको देखते देखते खुद अगर अंदर से दुखी होंगे, तो आई डोंट थिंक दैट योर लाइफ वुड बी अ सेटिस्फाइड लाइफ। You can only be satisfied only if you love yourself. And second important thing which I have learned is patience. Patience बहुत ही जरूरी होता है, especially in these life today we get so impatient even on small matters. लोगों के पास पेशेंस तो जैसे अब रहा ही नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से सबको खुद पे इतना वर्क करना चाहिए कि उनमें पेशेंस आ जाए और खुद से प्यार करने लगे। These two are, I think, the pillars which everyone should learn. And it would be a beautiful thing in this whole world. एग्जैक्टली एंड पेशेंस एंड सेल्फ लव ये सारी चीजें खत्म इसलिए हो गई हैं बिकॉज देर 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 कम्स अ मोबाइल एडिक्शन सो एवरीवन इज बिजी इन दैट सो here is the Very beautiful book which is authored by myself and my husband as a beautiful book you can see and we have also sent to ma'am. So ma'am, what would you like to say about the book Mobile Addiction, which is I would say actually that today's this scenario? book, yeah, this book should be read by each and everyone because सबको मोबाइल एडिक्शन किसी न किसी परसेंटेज में तो है ही। इवन द चिल्ड्रन एंड जो एजेड लोग होते हैं वो भी। So this book has to be read by each and everyone. I think this book should be translated in other languages also so that the reach can increase. Surely. सबको ये पढ़ना चाहिए because Sure. the points mentioned over there are so true and correct. जो आपने सारी टिप्स दी हुई है उसमें, वो अगर सब फॉलो करने लगे तो मेरे हिसाब से देयर लाइफ वुड बी ट्रांसफॉर्मेशनल, ब्यूटीफुल एंड ड्रॉन टुवर्ड्स नेचर एंड देयर ओन सेल्फ आल्सो। सो फिर वो खुद को लव करना शुरू कर देंगे। Exactly, exactly. Thank you so much, ma'am. We'll look for this translation point. Thanks for highlighting this beautiful point. For sure. Yes. And congratulations, ma'am. Since you have completed your silver jubilee, that is 25 years in a profession. So we definitely love to have corporate advice from you for the freshers coming out from the college to start their professional journey. And this advice is required basically to thrive in the corporate world because जिस हिसाब से corporate भाग रहा है, तो आपसे बेस्ट एडवाइस और कौन दे पाएगा बिकॉज यू हैव सीन 25 years ऑफ इट. यस, व्हेन आई वाज स्टडीइंग सीए हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे उस वक्त। तो अगर कॉमर्स में हो तो सीए या एमबीए कर लो, एमबीए भी उतना प्रिवेलेंट नहीं था। और अगर साइंस में जाना हो तो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब तो इतनी एवेन्यूज ओपन हो गई है सब बच्चों के लिए कि मेरे हिसाब से कॉरपोरेट की दौड़ भी अभी जरूरी नहीं है। एवरीवन शुड फॉलो देयर पैशन। ये अलग बात है कि मेरा पैशन ही सीए था। हम्म. मैं तब से सीए करना चाहती थी जब मुझे उसका फुल फॉर्म भी पता नहीं था कि उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। सो आई हैड दैट पैशन एंड आई हैड द लव फॉर नंबर्स।
जो अब एंजल नंबर्स के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया है फ्रॉम पीएनएल एंड बैलेंस शीट, नाउ इट हैज बिकम टू एंजल नंबर्स। तो मेरा नंबर्स का प्यार मुझे यहाँ पे ले आया था। एंड पीपल शुड थिंक कि उनकी पैशन क्या है, और पैशन को फिर उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहिए और उससे कमाना चाहिए। मेरे हिसाब से तभी आपकी लाइफ सफल भी होगी और हैप्पी भी होगी। only if you do what you like, then you can pour or your heart into that work। और जब आप हार्ट पोर करके काम करोगे तभी सफल भी होंगे और तभी सेटिस्फाइड भी होंगे। So don't run after the corporate life or any kind of life for that matter। दूसरों का देख के मत भागो, खुद के दिल को फॉलो करो। एंड दैट इज माय टैगलाइन आल्सो, माय पेन नेम इज मिस्टिकल मीनास, फॉलो योर हार्ट। यू शुड ट्रूली फॉलो योर हार्ट। एग्जैक्टली exactly। और कभी कभी ये भी होता है कि मतलब फैमिली में अगर मान लीजिए अभी जैसे मेरे डैड बैंक में थे, सो आई केम इनटू द बैंकिंग इंडस्ट्री। सो वही चीजें होता है, कभी कभी हम लोग ये चीज फॉलो करते हैं कि जो फैमिली में चल रहा हो, तो उससे कभी कभी कुछ लोग, मतलब ये एक मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग करें क्योंकि आपके पेरेंट्स भी सही एडवाइस देंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट जैसे कि मैम ने बताया, पैशन भी आप अपना साथ में साथ करें। बट मुझे भी कभी पता नहीं था कि मेरे अंदर एक ऑथर है। बट देन सिंस the COVID came, so I realized that I had an author inside me। तो जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो बैंकिंग वॉज इन टू दी एसेंशियल सर्विसेज। सो व्हेन वी आर ट्रैवलिंग बाय बस, सो उस टाइम पे क्या करें, कैसे दैट जर्नी को हम लोग पास ऑन करें, दैट दैट टाइम आई स्टार्टेड राइटिंग। सो पैशन को भी फिर मैंने एक्सप्लोर किया। उस टाइम हालांकि टाइम नहीं मिल पाता था इतना, तो ऑल टाइम नहीं हो पाता था ड्यूरिंग आई वॉज इन टू दी बैंकिंग। But then now I have totally explored into the auto industry, and it's like giving back to the society is we truly love। And all 108 co-authors, I would like to heartily congratulate them, because आप लोगों को शायद अभी भी रियलाइज नहीं होगा कि आप लोगों ने क्या किया है। बट वॉट एवर यू हैव पेन डाउन टुडे, बुक्स आर इमॉर्टल एंड दे हैव नो एक्सपायरी डेट। और जो भी कोई भी कभी भी बुक्स को रीड करेगा, से दे विल डेफिनेटली लर्न सम और द अदर पॉइंट फ्रॉम इट। अगर हम अकेले से इसको अगर लिखते थे इस टॉपिक पे, तो एक अलग ही बात है। तो वहां इतने सारे थॉट्स नहीं मिलते। यहाँ आपको एक किताब के अंदर 108 थॉट्स मिलेंगे। मतलब आप लोग इसको जो है ना सोच नहीं सकते कि कितनी सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। अब अगर केवल मैम का आर्टिकल रीड करते तो ही इतनी सारी चीजें हमें सीखने को मिली, तो 108 which is like truly beyond, so should definitely read and purchase it। So पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू तो इतने चेंज हो जाएंगे आप लोगों के बुक के पढ़ने के बाद कि आई कैन वेरी वेल अश्योर कि ये बुक है ना कुंवारों को भी काम आएगी, शादीशुदा लोगों को भी, डिवोर्सी लोगों को भी, और जो शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं उसका डिसीजन लेने के लिए भी काम आएगी। thank you तो so इट इज अ much। मस्ट Basically रीड it's बुक a फॉर ईच manual। एंड या। और जिन लोगों की शादी ठीक नहीं चल रही है लेकिन अभी भी शादी में है, उन लोगों के लिए भी टिप्स है कि आप कैसे उस शादी को या तो सुधार सकते हैं या फिर बाहर निकल सकते हैं उससे। सो टेकिंग अ डिसीजन ऑल्सो, इट विल हेल्प यू टू टेक द डिसीजन। रीडिंग दिस बुक इट इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। ये मेरे हिसाब से 20+ लोगों के बाद तो ये पढ़नी चाहिए बुक, फॉर एवरी 20+ पीपल। Thanks, ma'am. Thanks for your wonderful suggestion. So, whosoever is listening it and whosoever will be listening it, definitely purchase it. And it's really a marriage manual, we can say, basically for you all। सो और एक बात बताना चाहूंगी, मैम रैंक कर रही हैं अपने स्कूल डेज के टाइम में, तो जानते हैं कुछ मेमोरी या मोमेंट उस टाइम की। और ये कुछ बहुत सारी चीजें जैसे मैम के साथ को रिलेट कर रही थी। जब मैं क्वेश्चंस बना रही थी तो आई वाज लाइक गोइंग टू माय स्कूल डेज बैक, बिकॉज आई वाज आल्सो रैंकर इन माय ग्रेजुएशन। आई केम थर्ड रैंक इन माय कॉलेज। सो दैट वाज लाइक आई हैड गॉन बैक टू माय स्कूल डेज एट दैट टाइम इन कॉलेज डेज। सो विल नो सम मेमोरी, मैम। Yes. The main memory which I share from my school days is during my 12th standard, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था बोर्ड का। एंड देन माय प्रिंसिपल हैड कॉल्ड मी, तो मुझे थोड़ा डर लगा था। मैं गई थी तो मैंने सोचा कि रिजल्ट खराब ना आ गया होगा क्योंकि फर्स्ट रैंक करे और बुला रहे हैं। बट देन आई वाज thrilled to know that I had secured the rank from my whole Surat city। वाओ। एंड दैट वाज अ मेमोरेबल मोमेंट। मुझे अभी याद है, मैं तब तो व्हीकल्स और ये सब होते नहीं थे, तो दौड़ती दौड़ती घर गई थी, घर पे बताने के लिए, फोन भी नहीं होते थे। सो दैट वाज ट्रूली मेमोरेबल। आई स्टूड फर्स्ट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बिकॉज उस वक्त हमारे स्टेट में इंग्लिश मीडियम को
इतना रैंक देते नहीं थे, वर्नाक्युलर्स को ही रैंक देते थे। तो मैं सबसे अगर टोटल में देखा जाए तो थर्ड रैंक फ्रॉम सूरत थी, और इंग्लिश मीडियम में देखा जाए तो आई वाज द फर्स्ट रैंकर फ्रॉम द होल सिटी। वाओ, और दैट सबका क्रेडिट मैं अपनी मम्मी को दूंगी। शी हैज बीन थ्रू आउट विथ मी, अभी तक है वो। उसका बैकिंग अगर नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं होती। एंड माई डैडी हैड द सपोर्ट, पीछे से जो सपोर्ट होता है सभी डैड का, वो मेरा था डैड का, कि कुछ भी चीज में मुझे ना कभी सुनना ही नहीं पड़ा था। नेवर एवर ही सेड नो, ही सेड ड्यूरिंग दोज डेज ऑल्सो, जब लड़कियों के साथ इतनी अच्छी पढ़ाई की बात नहीं होती थी, है टोल्ड मी के बेटा जो भी तुम्हारे दिल को करना हो वो तुम करो। एंड आई हैड दैट फ्रीडम फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी आज हूँ वो उन लोगों की वजह से हूँ। सो पेरेंट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। एवरी पेरेंट शुड अंडरस्टैंड दैट कि बच्चों को वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। दैट्स एक्चुअली ट्रू। क्यों मतलब पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, और पेरेंट्स को जो है ना बच्चों के फ्रेंड्स बन के रहना चाहिए, लुकिंग टू दिस एग्जैक्टली। डिजिटल सिनेरियो। क्योंकि जहाँ थोड़ा सा भी रूडनेस और जहाँ थोड़ी सी भी रेस्ट्रिक्टनेस आई उनकी तरफ से, तो बच्चे तुरंत ही दूर हो जाएंगे और फिर वो शेयर करना छोड़ देंगे, विच विल आई कैन टेल यू दैट आज तक मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं मेरी दुनिया में, क्योंकि बचपन से मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मम्मी ही रही है। आई कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग विथ हर, कुछ भी हो आई कैन शेयर इट विथ हर। चाहे फिर कुछ और चीजें हो, गलत चीजें हो, वो भी मैं आसानी से शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज शी हैज नेवर टोल्ड मी कि अरे तूने ये क्यों कर दिया। शी विल लिसन टू मी पेशेंटली एंड शी विल गाइड मी ऑलवेज। So that backing, if you get from your parents, I bet you can be a wonderful person in your life. एग्जैक्टली exactly, और क्योंकि उन्होंने जो है ना अपने टाइम से एक्सपीरियंस उन्होंने लाइफ देखी हुई होती है, तो वो लोग जो भी सजेस्ट करते हैं वो डेफिनेटली राइट ही सजेस्ट करेंगे, इसलिए उन लोगों के साथ शेयर करना इज अ मस्ट। उसके लिए आपको फ्रेंड्स बन के रहना है, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। जहां थोड़ी सी भी ये चीज हुई ना कि थोड़े से भी अगर बच्चे दूर हो गए, तो क्योंकि जैसा सिनेरियो चल रहा है, लुकिंग एट दैट ऑल्सो मोबाइल एडिक्शन इज अ गुड बुक, सो Yes. डेफिनेटली यू मस्ट रीड। सो उससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी एंड बच्चे जो है वो गलत डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे, सो इसीलिए दैट्स अ मस्ट, सो यू शुड बी फ्रेंड्स विथ योर चिल्ड्रन। एंड सेवन लॉ ऑफ लाइफ का आर्टिकल मैम, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे लाइफ में बैलेंस रख सकते हैं लर्निंग, अर्निंग और एक्सपेक्टेशन। कैन यू ब्रीफ अबाउट योर आर्टिकल? Yeah, I would like to mention that learning is the most important part, as I told you. अगर मैं उस वक्त इतना मैंने सीखा नहीं होता, जब there were no more opportunities for the girl child, I would not have been where I am today. And जो freedom मिली, उससे मैंने जो पॉजिटिवली लिया लर्निंग के द्वारा, वो भी बहुत जरूरी है। बच्चों को भी समझना चाहिए कि अगर फ्रीडम मिलती है तो वो अच्छी तरह से पॉजिटिवली यूज करे। मैंने वो पॉजिटिवली अपने लर्निंग के लिए यूज की, एंड टुडे आई कैन से दैट कुछ भी लर्निंग कभी भी वेस्ट नहीं जाता। जो छोटा भी हम किसी से सीखते हैं वो कभी ना कभी जिंदगी में काम आता ही है। लर्निंग नेवर गोज वेस्ट। और लर्निंग करोगे, मैं ये नहीं बोलती कि बुक्स पढ़ो या कुछ डिग्री ले लो, दैट इज नॉट दी ओनली लर्निंग। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है जो बुक्स नहीं सिखा सकती। सो सभी तरह की लर्निंग लेनी जरूरी होती है, नॉट ओनली द क्वालिफिकेशन पार्ट। क्वालिफिकेशन ये दुनियादारी की लिए जरूरी है, वो करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन साथ साथ जिंदगी जो सिखाती है उस पर भी ध्यान दे के चलो, उससे लेसन्स लो, और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। देन यू विल बी मच बेटर पर्सन। और लर्निंग अगर अच्छी हो, जिंदगी की लर्निंग भी अच्छी हो, तो डेफिनेटली यू विल अर्न गुड। अर्निंग भी मैं बोलूंगी कि सिर्फ पैसों की ही अर्निंग नहीं होती। हमारी जो ऑनेस्टी है, वो सारी चीजें जो है, हम जो रिस्पेक्ट पाते हैं दूसरों से, वो भी हमारी अर्निंग ही है। मैं मानती हूँ कि वो तो सबसे ज्यादा अच्छी बढ़िया अर्निंग है। वो हमारे बुरे समय में बहुत काम आती है, दैट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। कि जब कुछ पैसे भी ना हो ना, तो लोग आपकी इतनी इज्जत फिर भी करते हैं, बिकॉज दे हैव सीन यू, दे हैव फेल्ट यू।
और लोग आपके इतना भरोसा करते हैं कि खुद की प्रॉब्लम्स या घर की लाइफ आपके साथ शेयर कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ये सब कुछ अपनी तक ही रखेंगे और किसी और को बताएंगे नहीं। तो रिस्पेक्ट विच यू अर्न इज अनसरमाउंटेबल, और वो कमाई कभी पीछा नहीं छोड़ती, वो हमारे साथ लास्ट तक रहती है। पैसे तो छोड़ के चले भी जाते हैं। क्योंकि वो सेल्फ एंड अबाउट है ना। या एंड एक्सपेक्टेशंस, मैं बोलूंगी कि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन खुद से रखो, किसी भी और से नहीं। किसी भी और से एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सामने वाले को तो पता भी नहीं होगा कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हो। सो वो अगर उसको पता नहीं होगा तो वो फुलफिल कैसे करेगा? So don't expect. And if you expect, then let them know that you expect from them. Communicate. Communication is the key, जैसे मैंने लिखा भी है अपने आर्टिकल में। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, जो आजकल हस्बैंड वाइफ भी नहीं करते। एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते। जो खुल के बात करनी होती है वो लोग नहीं करते। खुल के बात करो तो मेरे हिसाब से 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन एवरीवन्स लाइफ कैन बी सॉल्व। और जो वर्ल्ड की जो अभी पोजीशन है, वो भी सिर्फ बातें करने से भी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। सभी चीज में कुछ लड़ाई करना बट जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन बातों से। प्रॉब्लम वही है ना, ईगो। ईगो आ जाता है कि हम यस, क्यों पहले बात करें। यस। बस वो ही चीज से जो है आगे फिर वो अंडरस्टैंडिंग देन मिसअंडरस्टैंडिंग में सारी चीजें चली जाती हैं। और पहले तो हम देखते थे कि बड़ों को ईगो होते थे, हम छोटों को तो होते ही नहीं थे। अब तो छोटे बच्चों को भी ईगो होता है। अरे बहुत। अरे हाँ, सामने से आप आके बात करो, छोटे हो या बड़े हो। डिजिटल अभी टोटल ये सब डिजिटल सारी चीजों ने सब खराब कर दिया है, और अभी यस। आगे और कितना होगा पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। इट्स नॉट कमेंटेबल ऑन दिस ट्रूली। बड़ों का लिहाज करना वो तो आप कोई जानता ही नहीं है। पहले के जमाने में होता था, आजकल नहीं है। बहुत होता था। बट बट सिखाओ। आई फील, हाँ, कि हम लोग जिस जमाने में, मैं जिस जमाने में एटलीस्ट बड़ी हुई हूँ ना, उसका मुझे सीरियसली प्राउड है कि मैं उस जमाने में बड़ी हो गई। आई एम द ओल्ड स्कूल पर्सन। बट डेफिनेटली अगर आज भी बच्चों को संस्कार दिए जाएं तो वो सीखेंगे, ऐसी कोई फॉर बात श्योर, नहीं है उसमें। बट फॉर श्योर। लेकिन उन्हें टीवी और ये डिजिटल वर्ल्ड से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये सारी बुरी चीजें और जो अडॉप्शन आ रहा है ना, ये सारा वहीं से आ रहा है। सारा सारा लेकिन वहीं से आ पेरेंट्स रहा है। की भी गलती है उसमें। मैं हमेशा देखती हूँ कि पेरेंट्स खुद ही मोबाइल दे देते हैं कि छोड़ अगर देते मोबाइल नहीं हैं। दूंगी तो ये खाना नहीं खाएगा, मोबाइल नहीं दूंगी तो ये पढ़ाई नहीं करेगा। अरे आप खुद ही सरेंडर हो जाते हो तो बच्चों को क्या सीख दोगे आप? एग्जैक्टली और अभी छोड़ दिया तो फिर वो एकदम से हैबिट बन जाएगी, तो फिर वो उसके बिना कुछ हाँ। काम नहीं करेंगे। और फिर बाद में रोएंगे कि मेरा बच्चा खराब हो गया, लेकिन वो नहीं देखेंगे कि खराब करने में आपका ही हाथ है। दैट्स घर में करेक्ट। अगर अच्छी चीजें सिखाओगे तो मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि जब मेरी बेटी चली गई थी, शी वॉज जस्ट 10 years old, और माई सन वॉज 6 years old, लेकिन उनमें तब भी जो बातें थी वो इतनी अच्छी हुई थी कि प्रेयर्स करो सवेरे उठने के बाद, रात को सोते से पहले प्रेयर्स करो। छोटी छोटी बातें जब हम घर में सिखाते हैं तो बच्चे सीखते हैं। और सिखाना भी जरूरी है नहीं, हम जो करते हैं ना वो देख के ही वो लोग सीख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Children imitate and copy you. They don't listen to your advice. एग्जैक्टली तो आप मैम करो आप। वो करेगा ही। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी क्या फीलिंग रही जब आपको ये बुक्स सर्टिफिकेट, व्हेन यू रिसीव दोस पर्सनलाइज्ड गुडीज, व्हाट वाज दैट फीलिंग एट दैट टाइम? I can say I was on top of the world, exactly like which I had felt when getting my result for the 12th standards. जैसे मैं रैंक होल्डर हूँ। कैन यू शो दोस And ब्यूटीफुल बुक्स टू ऑडियंस, सर्टिफिकेट बुक? sure, sure, why not? This is my certificate. यस। This is the beautiful book मोबाइल एडिक्शन के लिए जो लिखी गई है। This is a book and a favorite topic also of mine, my marriage, bliss versus curse. This is Seven Lee of Lies. These books are a treasure for everyone and it is not meant for any age group. ये बुक की खासियत ही ये है, तीनों तीन बुक के कोई भी एज ग्रुप को रिलेट नहीं करती।
ये सभी लोग पढ़ सकते हैं और सभी लोग कुछ ना कुछ इसमें से सीख ही सकते हैं। Thanks for all the love and respect, ma'am. So, how would you like to recommend Ankakshar Miracles to the upcoming generations, to the budding authors who are coming? आई कैन से कि मैं बहुत सालों से, अराउंड 7 to 8 years पहले से मैं सोच रही थी। ये सोच मुझे केबीसी देखते वक्त आई थी, आई रिमेम्बर, बिकॉज वंस उन्होंने बोला था कि आप अपनी स्टोरी लिख के भेज सकते हो केबीसी पे। उस वक्त मुझे ख्याल आया था कि आई नीड टू राइट अ बुक व्हेन आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट माय चिल्ड्रन। सो तब मुझे ये रियलाइज हुआ था कि मुझे बुक लिखनी है, लेकिन तब ऑफिस और ये सब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो मैं कुछ कर नहीं पाई थी। एंड व्हेन आई सॉ द अपॉर्चुनिटी, आई टोटली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी कि मेरा सपना यहाँ से शुरू होगा। सो दिस इज माय फर्स्ट बुक इन राइटिंग, एंड थैंक्स टू बोथ ऑफ यू कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, because it has given me that confidence कि yes I can write. Earlier I did not have the confidence. मुझे लिखना तो था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो you were the ladders, I can say, कि जो मुझे आगे बढ़ने में, मुझे चढ़ने में मेरी सहायता हुई। So now I can feel that if I want to write a book now of my own journey, then I can easily write it. मैं ये बुक इसलिए लिखना चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि सारी मुसीबतें आने के बाद भी आप कैसे बाहर आ सकते हो। Even if it can be a motivation to one single person to come out of the grief and not have thoughts of suicide which I had once, तो मेरे हिसाब से मेरा ये लाइफ सफल हो जाएगा। Thank you so much, ma'am. Thanks for all the love and respect, and thanks for your wonderful thoughts. So, and thanks for joining in. This was Renu Mangtani with CA Minas. तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मिराकल्स के साथ। जल्दी मिलेंगे अगली न्यू को ऑथर के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, मैम।